last class, we discussed the equation of a plane in vector and in Cartesian form. Today we shall discuss few more things. Yes. First is intercept form of equation of plane. Yes. Last class में हमने किया था कि general equation of the plane in Cartesian form is given by this. ax plus by plus cz plus d equals 0. It is a first degree equation in three variables x, y and z. So it is the equation of a plane. Now let plane makes intercepts a, b and c on x, y and z axis respectively. इस प्लेन का x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है a, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है b और z एक्सिस पर इंटरसेप्ट है c. तो इसका मतलब है ये जो प्लेन है वो x एक्सिस को से इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट a पर. तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0, 0. इसी तरीके से क्योंकि y इंटरसेप्ट है b, तो y एक्सिस पर जहाँ प्लेन इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, b, 0. और इसी तरीके से c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, c. अब ये जो पॉइंट a है इट लाइज ऑन द प्लेन. सो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इस इक्वेशन में आई रिप्लेस x विद a, y विद 0, z विद 0. सो आई गेट वैल्यू ऑफ a एज माइनस d ओवर स्मॉल a. राइट. सिमिलरली ये जो पॉइंट b है ये भी प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो x को रिप्लेस कीजिए 0 से, y को रिप्लेस कीजिए स्मॉल b से और z को रिप्लेस कीजिए 0 से. सो फ्रॉम हियर आई गेट b इक्वल्स माइनस d ओवर स्मॉल b. सिमिलरली दिस पॉइंट c ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन, तो ये भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो x को रिप्लेस कीजिए 0 से, y को रिप्लेस कीजिए 0 से और z को रिप्लेस कीजिए स्मॉल c से. सो वी विल गेट कैपिटल C equals minus d over small c. So this equation of plane will become, yes, capital A को रिप्लेस कीजिए minus d over small a से, so I'll get minus d over small a into x plus b को रिप्लेस कीजिए minus d over small b into y, c को रिप्लेस कीजिए minus d over small c z plus capital D equals 0. Right? So I can write this as minus D I have taken common. Here I'll get x over a plus y over b plus z over c minus 1 equals 0. So this implies x over a plus y over b plus z over c minus 1 equals 0. And this will imply x over a plus y over b plus z over c equals 1. And yes, note that here this capital D will not be equal to 0, this d. Because ये जो प्लेन है वो x, y और z एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है. So d cannot be equal to 0. Right? So this is the required intercept form of the equation of the plane. It is x over x intercept. Small a was the x intercept plus y over y intercept plus z over z intercept equals 1. Right? इसका मतलब है अगर एक प्लेन x intercept है उसका 4, y intercept 2 और z intercept say 3. If I ask you what will be the equation of the plane, so equation of plane will be, yes, x over x intercept which is 4 plus y over y intercept which is 2 plus z over z intercept which is 3 equals 1. Yes. Now we will discuss equation of plane through three non-collinear points. Three non-collinear points determine a unique plane. Right? So
Now we shall obtain the equation of a plane determined by three non-collinear points. Let A, B and C be three non-collinear points on the plane. A, B and C. Let the coordinates of the point A be x1, y1, z1. Coordinates of the point B will be x2, y2, z2. And coordinates of the point C will be x3, y3, z3. And let the position vector of the point A be vector A, position vector of the point B be vector B, and position vector of the point C be vector C. Yes. Now vector A is the position vector of this point capital A, whose coordinates are x1, y1, z1. So this vector A will be x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. Similarly, vector B is the position vector of this point capital B. So this will be equal to x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap. Similarly, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर C. So it will be x3 I cap plus y3 j cap plus z3 k cap. So now we have to obtain the equation of this plane. So let P x, y, z be any point in the plane with position vector r. इस प्लेन के ऊपर हमने एक जनरल पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z और जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r. राइट? तो r वेक्टर होगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. Now, by vector form of equation of plane, equation is given by vector r minus vector a dot vector n equals 0. जहाँ पर ये जो वेक्टर a है, it is the position vector of the point which lies on the plane. और ये जो वेक्टर n है, इट इज द नॉर्मल वेक्टर. राइट? यानी कि अगर मुझे एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे उसके ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए और मुझे उसका नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए. अब इस केस में मुझे प्लेन के ऊपर एक नहीं 3 पॉइंट्स पता हैं, तो मैं इनमें से कोई भी पॉइंट यूज़ कर सकती हूँ. सपोज आई यूज़ दिस पॉइंट ए. राइट? तो position vector of the point which lies on the plane in this case will be vector A. राइट? क्योंकि A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर A. अब मुझे प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकालना है, यानी कि वेक्टर n निकालना है. सो अब हमें इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी कि वेक्टर n. राइट? नाउ लुक हियर, A पॉइंट प्लेन के ऊपर है, B पॉइंट प्लेन के ऊपर है, तो ये जो वेक्टर AB है ये प्लेन के ऊपर लाई करेगा. नाउ कैन यू फाइंड वेक्टर AB? यस. परफॉर्म हेड माइनस टेल, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A. सो वेक्टर AB विल बी वेक्टर B माइनस वेक्टर A. सिमिलरली ये जो वेक्टर AC है ये भी इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा. So vector AC will be vector C minus vector A. So now vector AB and vector AC इस प्लेन के ऊपर हैं जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. राइट? Now look here, जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो वो जो नया वेक्टर मिलता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस पर वो दो वेक्टर्स लाई करते हैं. राइट? यानी कि अगर मैं वेक्टर AB और वेक्टर AC का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो ये जो नया वेक्टर मिलेगा वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस पर ये दोनों वेक्टर्स लाई करते हैं. यानी कि वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन जिसके ऊपर वेक्टर AB और वेक्टर AC लाई करते हैं. सो डू यू अग्री कि वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC विल बी नॉर्मल टू द प्लेन? यानी कि प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है दैट इज वेक्टर n, इट इज गिवन बाय वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC. नाउ वेक्टर AB वॉज वेक्टर B माइनस वेक्टर A and vector AC was vector C minus vector A. So vector n, that is the normal vector, is given by this.
अब हमें प्लेन के ऊपर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है और हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है. सो बाय दिस फॉर्म इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी गिवन बाय वेक्टर r माइनस, yes, it is the position vector of this point A which lies on the plane. मैं B को भी यूज कर सकती थी, C को भी यूज कर सकती थी. डॉट वेक्टर n, that is the normal vector, which is vector B minus vector A cross vector C minus vector A equals 0. So this is the vector form of the equation of the plane passing through three non-collinear points. Now I have to write this equation in the Cartesian form, right? But before that, let's see one result. Okay, suppose I have three vectors, vector p, q and vector r, जो अपनी component form में given है, right? Suppose I have to find out vector p dot vector q cross vector r, right? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेक्टर q क्रॉस वेक्टर r निकालूंगी. सो वेक्टर q क्रॉस वेक्टर r, क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं. तो पहली रो होगी डिटर्मिनेंट की i कैप, j कैप, k कैप. सेकेंड रो में q के कंपोनेंट्स जो कि हैं q1, q2, q3. देन वेक्टर r के कंपोनेंट्स जो कि हैं r1, r2 एंड r3. सो when we expand the determinant along the first row, vector q cross vector r will be this. ठीक है. अब मुझे कंप्यूट करना था वेक्टर p डॉट वेक्टर q क्रॉस वेक्टर r, यानी कि इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर p के साथ. अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो और उसके बाद उनको ऐड कर देते हो, राइट? तो p1 इंटू this, right? Then p2 into this, then p3 into this. यही आएगा p dot vector q cross vector r. Now tell me, can I write this result as, yes, vector p dot vector q cross vector r. Can I write this as determinant p1, p2, p3. फर्स्ट रो में इस वेक्टर p के कंपोनेंट्स, देन सेकेंड रो में वेक्टर q के कंपोनेंट्स q1, q2, q3 और थर्ड रो में वेक्टर r के कंपोनेंट्स, राइट? अब जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करोगे, डू यू गेट द सेम रिजल्ट, राइट? सो वेक्टर p डॉट वेक्टर q क्रॉस वेक्टर r इज गिवन बाय दिस. इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स. नाउ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होते हुए प्लेन की वेक्टर इक्वेशन थी ये. मुझे इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट? तो सबसे पहले मैं ये तीनों वेक्टर्स फाइंड आउट करूंगी. सो वेक्टर r माइनस वेक्टर a, यस, व्हाट वाज वेक्टर r? इट वाज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप और वेक्टर a था x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप. तो r माइनस a वेक्टर होगा x माइनस x1i कैप प्लस y माइनस y1j कैप प्लस z माइनस z1k कैप. इसी तरीके से वेक्टर b माइनस वेक्टर a, वेक्टर b था x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप. सो वेक्टर b माइनस वेक्टर a विल बी x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप प्लस z2 माइनस z1k कैप, राइट? सिमिलरली वेक्टर c माइनस a, दिस माइनस दिस विल बी x3 माइनस x1i कैप प्लस y3 माइनस y1j कैप प्लस z3 माइनस z1k कैप. नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वाज वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर a इक्वल 0. ये वेक्टर फॉर्म थी. हमें इसे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में, राइट? अब मुझे बताओ क्या ये चीज़ इस फॉर्म में है, वेक्टर p डॉट वेक्टर q क्रॉस वेक्टर r, जहाँ पर वेक्टर p का रोल प्ले कर रहा है ये वेक्टर, q का रोल प्ले कर रहा है ये वेक्टर और वेक्टर r का रोल प्ले कर रहा है ये वेक्टर, राइट?
और अभी हमने देखा था दिस कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, जहां पर डिटर्मिनेंट की पहली रो में आएंगे इस वेक्टर के कंपोनेंट्स, सेकेंड रो में वेक्टर क्यू के कंपोनेंट्स और थर्ड रो में वेक्टर आर के कंपोनेंट्स, राइट? सो यूजिंग दिस कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट, यस, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए के कंपोनेंट्स x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, राइट? नेक्स्ट रो में वेक्टर b माइनस वेक्टर a के कंपोनेंट्स जो कि हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और थर्ड रो में वेक्टर c माइनस वेक्टर a के कंपोनेंट्स जो कि हैं x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 minus z1, and this equals 0, right? So the Cartesian form of the equation of the plane passing through three non-collinear points is given by this. Let's take one question. Write the equation of the plane in vector and in Cartesian form passing through the non-collinear points A with coordinates 2, 5, minus 3, B minus 2, minus 3, 5 and C 5, 3, minus 3. इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होते हुए आपको प्लेन की इक्वेशन लिखनी है इन वेक्टर एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म. अभी हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटर्मिन्ड बाय थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 इज गिवन बाय दिस, राइट? तो यहाँ पर जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो हैं आपके ए बी सी. तो ये आपका x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2 and this is x3, y3 and z3, right? Now equation of plane is given by this. So let's put the values. X minus x1 that is 2. So x minus 2, y minus y1 that is y minus 5, then z minus z1 that is z plus 3. Second row है x2 minus x1, this minus this, so minus 2, minus 2, minus 3, minus 5, 5, minus minus 3. Then third row is x3 minus x1, this minus this, 5 minus 2, 3 minus 5, minus 3, minus minus 3. This determinant equal to 0. So here I'll get x minus 2, y minus 5, z plus 3. This will be minus 4, minus 8, 8. This is 3, minus 2, 0. Right? Now I'll expand this determinant along first row, that is R1. So I'll get x minus 2 into 0 plus 16 minus y minus 5, 0 minus 24 plus z plus 3, 8 plus 24 equals 0. So it is 16 into x minus 2, 24 into y minus 5 plus 32 into z plus 3 equals 0. So on simplification, you will get the equation as 2x plus 3y plus 4z minus 7 equals to 0. Now this is the equation of the plane in Cartesian form. अब मुझे इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में भी चाहिए. वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय दिस, राइट? यहां पर वेक्टर n है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर हमें प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म पता है तो क्या वहां से आप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हो? यस. drs ऑफ नॉर्मल वेक्टर are given by coefficients of x, y and z. So drs are 2, 3 and 4. अब नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज पता हैं, यानी कि उसके स्केलर कंपोनेंट्स पता हैं, तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? यस, इट विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म विल बी वेक्टर r डॉट, यस, व्हाट इज वेक्टर n? इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स d, और d का मतलब है ये कांस्टेंट, इसको शिफ्ट कर दो, इट विल बी 7. So this is the vector form of the equation of the plane.